Uh-huh. Sir, my name is Vikas Sharma. I'm from Vidisha, Madhya Pradesh. Okay, great. You said Mahesh Sharma. Vikas, Vikas, Vikas Sharma. Vikas Sharma. So, Yes, Vikas, sir. let me know a little more about you. Sure, sir. So basically, I'm a dropout, BTech dropout in 2010 from IT. At this point of time, I'm working on technology only, and I'm 12-year experience in working for the customer relationship across the globe. Apart from this, at this point of time, I started up. Just a minute. You said that customer across the globe. Would you like to little elaborate before you really? Sure, Yeah. sure, sir. So basically, I started working from 2011, and my job role was like a client servicing, the client servicing. So I worked for multinational companies like for UK. I worked for the companies like British Airways and Travel. Apart from that, for a couple of agencies in US, I worked for them. So I was doing the establishment of the technology, like how the customer is using the old methods and how the implementation of the technology. My job role was to train them how to use the applications and everything. And after that, so after working for till COVID, after that I lost my job in British Airways. Then I started. I'm like a fond of technology, so I started working on it, and then I realized the crimes which are happening in like the cyber crime. So I started a sort of revolution to make people aware about the cyber Uh, security and the cyber crime. Say, Vikas, let me allow me to really little intervene in between. Uh, Oh, I'm sorry, sir. uh, no, 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 I mean, there's nothing to say. Sorry, basically, what I intend to say, awareness. Is it helping people or it is helping criminals? It is helping people now. No, I no. started kind of I am holding as a senior police officer. I am holding a absolutely different view. Basically, it is creating kind of a fear which is being encased by the criminals, and the fear is being used not to pursue a open and technology, because you are afraid of everything. You are afraid of clicking a link. You are afraid of opening a message. So that fear is being generated, and the people are creating, those who are in the helm of the technology, they are creating virus for themselves and creating business for themselves. They are not the good people. They are bad people. Had the they mathematician are. could, if the mathematician could get the full opportunity, I will put them behind the bar, and I will be doing that. Let me tell you, the people can only come and collaborate with the government. They will not dare to create any negative activity. I dare each and everybody to do this. Do you know I am having a full-fledged module to Mhm. ensure कि कोई साइबर क्राइम कर ही नहीं सकता है. Should I discuss with you? आप Mm. बड़े से बड़े बदमाश से बदमाश व्यक्ति की औकात नहीं होगी साइबर क्राइम करने की. आपको मालूम है, जो आप मैसेज भेजते हैं, जो आप लिंक भेजते हैं, वो सब अटेम्प्टेड क्राइम है. डू यू नो दैट? नहीं. Yes, sir. डू Like, यू नो? नहीं नहीं. डू यू हैव द आइडिया अबाउट द लॉ कि जो भी व्यक्ति एक इवन लिंक भेज रहा है, एसएमएस भेज रहा है या कॉल कर रहा है विथ इंटेंट टू कमिट साइबर क्राइम, ही इज अटेम्प्टिंग a crime which is a crime under the present law. the Under the IPR 2000. I am saying under not IT, even in IPC also. So IT and as well as IPC, both joiner sections would be applied, and the minimum penalty is that is 2 year, right? Yes, sir. Now, if you are having a system which will be taking the cognizance of you in sending the message and having the tools to get FIR registered without going to Thana, right? Right, sir. And Yes, sir. collecting all evidences infallibly, because we have to just make little correction. All OS would be having one button. By pressing that button, that system will start recording everything, right? And at the back of Yes. it, there will be a kind of intelligence. AI would be working. The moment you will ask the OTP, it will immediately start flashing the
वर्चुअल ओटीपी विच इज फॉल्स। अब आप ये करिए, जैसे अज्यूम करिए कि लेट्स प्ले ए गेम रोल एट द मोमेंट, राइट? तो विकास, अज्यूम करिए कि आप एक क्रिमिनल है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, क्योंकि मैं हूं भी और आप क्रिमिनल नहीं है, सो सॉरी टू आई मीन गिव द रॉन्ग एनालॉजी, बट चलिए फॉर द गेम प्लेइंग लेट्स से दैट कि आप एक अपराधी हैं और मैं पुलिस ऑफिसर हूं, राइट? अब आपने मुझे एक वॉइस कॉल लगाया तो मुझे मूर्ख बनाने के लिए, राइट? और मूर्ख बनाने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप जो है ना कोई ऐसा कारण खोज ही लोगे जो कि मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसे कोरोना में कोरोना के संबंधित हो जाएगा, कभी किसी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कभी इसका हो जाएगा, कभी उसका हो जाएगा, तो बहानों की कमी नहीं है, राइट? मतलब हम अपना जो है सब्जेक्ट मैटर बदलते रहेंगे और लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे, करेक्ट? अब मान लो विकास शर्मा जी मैथिली गुप्त को मूर्ख बना रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कंसर्न कि जिसके लिए मेरा जो है एटीट्यूड होगा, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू गेट द मनी, और पेंशन हो सकता है, आईटी रिटर्न हो सकता है, व्हाटएवर, राइट? इफ समबडी इज लुकिंग फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट सम जॉब, सो दैट कुड बी, आई मीन देयर कुड बी एन नंबर ऑफ द थिंग्स, राइट? अब आपने मुझे अप्रोच किया, राइट? The moment you talk to me, I had a just little suspicion. I am not very sure कि विकास सही है या गलत है, तो हमने एक सस्पिशन वाला बटन दबा दिया जो कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा, राइट? वो दैट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ऑल एक्टिविटीज, राइट? वट एवर यू आर टेलिंग, दिस दैट एवरीथिंग वुड बी रिकॉर्डेड, राइट? And at the same time, at the back, it is not a dumb recording, it is a active recording where the artificial intelligence will be identifying what is being spoken about, right? बात क्या हो रही है, क्या कर रहे हो आप, राइट? तो यदि आपने कहा कि ओटीपी दो, तो वो स्मार्ट होगा, एक आर्टिफिशियल फालतू का वर्चुअल ओटीपी क्रिएट कर देगा जिसका कोई मतलब नहीं है, राइट? जिससे आप यदि 5 बार भी कहोगे तो हम उस ओटीपी को रिपीट कर पाए, राइट? अब आप अपनी स्थिति सोचो कि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, और जब आप जो है ना उस ओटीपी को डालेंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला ठेंगा, तो मेरा अभी पुराना अनुभव है कि क्रिमिनल्स इतने दुष्ट हो गए हैं कि दे डेयर टू टॉक कॉल द पर्सन, एंड उसको गालियां देने में भी उन्हें लज्जा नहीं आती है। आप, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस, आई एम हैविंग द डायरेक्ट एक्सपीरियंस आल्सो। जब हमने उसको हड़काया कि साले तुम साइबर क्रिमिनल हो, तो उसने गाली देना चालू कर, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट नोइंग फुल्ली वेल कि वो ही इज स्पीकिंग टू डीजी, बट इतने फियरलेस हैं कि उन्हें डर नहीं लगा। तो हाँ, नहीं, क्योंकि वो उनको मालूम है कि हम बहुत दूर कहीं बैठे हुए हैं, झारखंड में पेड़ के नीचे, पुलिस इतनी घटिया है कि ना वो कॉग्निजेंस लेगी, वो अपने डीजी के लिए भी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, वो इतनी घटिया हो गई है, राइट? वो अपना फालतू चीजों में बिजी रहने की और नेताओं की चम्मचगिरी में जो है ना अपना समय बिता रही है और सोच रही है कि बड़ा काम कर रही है। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, यदि हम एक अमेंडमेंट और लेके आते हैं कि अभी जो कॉल डिटेल्स वगैरह हैं, ये तो दुष्टों ने अपने जो है ना कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, बिलिंग के हैं, है कि नहीं है? नाउ हम एक लॉ लाते हैं जिसमें हम कहेंगे कि जो वर्चुअल चीजें हैं दे विल आल्सो बी फेच्ड एंड रिकॉर्डेड। तो हमने एक तो जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे अटैक किया कि कम्युनिकेशन तभी संभव होगा जब आपके रिलेवेंट डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन पोजिशन टू हैव कम्युनिकेशन, राइट? और ये आपकी मजबूरी है कि आप मुझसे कम्युनिकेशन करें, मेरी मजबूरी नहीं है, राइट? तो हमारे उसमें जो है ओटीपी प्रोटोकॉल से ही, नॉट ओटीपी, हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से हमने आपकी वो चीजें कैप्चर कर ली जो पहले कैप्चर नहीं हुई। नाउ द सेकेंडली, जो आपका उसमें जो वोलेटाइल डाटा चलता रहता है जो कैप्चर नहीं होता है, बिकॉज दैट इज नॉट द कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट एंड इट इज नॉट ए बिग डाटा, इट इज ए लोकेशनल डाटा, इट इज ए अदर जो है ना वोलेटाइल डाटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज अवेलेबल इन ए वोलेटाइल फॉर्म ऑन द स्विच, हम उसे कैप्चर कर लेंगे, राइट? नाउ दैट विल बी स्टोर्ड, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल फाइल्स, राइट? नाउ आई नो who are, I know that volatile data which will fix you where you are and all those kind of the things, right? Now I have already manipulated your protocol, communication protocol, so आप जो है ना बक्कारी बदमाशी नहीं कर पाओगे। यदि आप एनामेटिक कंट्री में भी बैठे हो, तो जब तक आपकी कंट्री हमसे जो है ना एग्रीमेंट नहीं करेगी कि यदि आपके क्लाइंट हैं, आपके सिटीजन ने हमारे साथ यदि गड़बड़ की, तो वो कंट्री हमको पे ऑफ करेगी, नहीं तो भाड़ में जाओ तुम हम, राइट? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यदि कोई दुष्ट कंट्री है जहां के लोगों का काम साइबर क्राइम करना है, तो वो कंट्री यदि भारत से संवाद रखना चाहती है, क्योंकि भारत को उससे संवाद नहीं रखना है, तो जो है वो हमारी ये शर्त माने
कि वो जो भी उसके देश में रहने वाला व्यक्ति है, यदि वो कुछ गड़बड़ करता है तो उसे जो है या तो उसे हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा या जो है उस राशि को हमें वापस देना होगा। राइट नाउ जो इसके साथ हमने वो सिस्टम कर दिया रिकॉर्डिंग का। अब बताओ ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके क्राइम को रिपोर्ट कर देगा, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर। नाउ आपके पूरे एविडेंस हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं, राइट? जो एनालिटिक्स करना है वो भी पुलिस को नहीं देंगे, हम अपने सिस्टम को ही जो है ना वो पावर दे देंगे, जो फालतू में पुलिस वाला जो कर ही नहीं रहा है, तो हम वो एविडेंस को भी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वी आर हैविंग इनफेलिबल एविडेंस अगेंस्ट यू विकास शर्मा, राइट? अब जो तीसरा जो क्राइम फ्री भारत का वो है सिस्टम, जो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर थ्रू द क्राइम फ्री भारत वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में न्याय मिल जाएगा। अब विकास ने जो है ना 1000 लोगों को मैसेज भेजा था और उसके डिजिटल प्रूफ्स के साथ जो है ना इनफेलिबल बनाते हुए अब जो है विकास शर्मा को जो है ना प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर विकास शर्मा जी प्रोसिक्यूट हो जाएंगे और 1000 में 2 साल का गुणा कर देंगे, तो विकास शर्मा जी आप कितने 1000 वर्ष जो है ना जेल में रहेंगे? हैं? कितने 1000 वर्ष जेल में रहेंगे बताइए मुझे? आप जिंदा तो रहेंगे नहीं, ठीक है ना? आप बताओ क्या किसी भी विकास शर्मा की औकात होगी कि वो साइबर क्राइम कर दे? और सिस्टम पे कोई लोड आया क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं सिस्टम पे कोई लोड नहीं आया है। और हमारे इसमें जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी है, तो जो गवाही देगा, जो करेगा, उस सबको जो है ना हजारों में और लाखों में पेमेंट मिलेगा, जिसका 2 से मल्टीप्लाई करके विकास शर्मा, तो विकास शर्मा के पिताजी बिक जाएंगे कि नहीं बिक जाएंगे? नहीं, डू यू एग्री विथ मी? अब बताओ साइबर क्राइम को अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए या इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहां साइबर क्राइम करने की किसी की औकात ना हो? आई स्ट्रांगली फील कि हमें कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करना चाहिए। वी शुड क्रिएट इकोसिस्टम जहां पे कोई भी दुष्ट व्यक्ति जो है ना साइबर क्राइम करने की औकात ही ना हो जिसकी। फिर हमें कोई अवेयरनेस करना होगी क्या? बताओ मुझे। नहीं, टेल मी, फिर हमें कोई अवेयरनेस करना होगी क्या? हमें वो जो हम अवेयरनेस में एनर्जी लगा रहे हैं वो हम मॉड्यूल्स जनरेशन में, कैप्चरिंग में और उन सब चीजों में वो लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? बिल्कुल सर। So we are not creating right kind of the ecosystem because. Chalo anyway, this I wanted to really discuss with you. I thought कि I am having as a DG for 7 long years. I feel ये हमारे राजनेता दुष्ट हैं जो राइट काइंड ऑफ द इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करते हैं। ये देश आज समृद्ध नहीं है, गरीब है, मोहताज है, तो इन दुष्ट राजनेताओं के कारण है। आप मुझे बताओ, कोई भी दुष्ट राजनेता, कोई भी अच्छा राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखता है क्या? आज आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे, जो भारतीयों को अपमानित और उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, जो भारतीयों को प्रतिक्रिया में फंसा के रखने के लिए बनाए थे, जो ये इंश्योर करने के लिए बनाए थे कि 30 से 35 साल 40 साल में भी आपको न्याय ना मिले। ऐसे नियम कानून क्यों थोपे हुए होना चाहिए हमारे ऊपर? बताइए क्यों छुपे होना चाहिए? ये क्या शुद्ध राजनीतिक दुष्टता नहीं है? मिस्टर विकास, डू यू एग्री विथ मी? यस सर, आई डू। अच्छा, अब मैं आपको सेकंड पार्ट कहता हूं। हमारा प्रशासनिक और जुडिशियल सिस्टम कौन सा है जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जो है ना भारतीयों को जो है ना अपमानित करें, उत्पीड़ित करें, जब चाहे जेल में भेज दे। एक छोटे से हमारे अदना पुलिस ऑफिसर जो है ना, बड़े से बड़े व्यक्ति को जो है ना 109, 151 में जज जिसको चाहे बंद कर दे। उस आपके पास केवल एक ही विकल्प है, अपनी जमानत करा लो, और है कोई दूसरा विकल्प आपके पास? उसको सिर्फ सस्पिशन हो रहा है कि हमें संदेह है कि तुम संज्ञेय अपराध करने वाले हो। आई कैन पुट यू मिस्टर विकास, यू माइट बी कंट्रीब्यूटिंग 1 करोड़ एज ए इनकम टैक्स टू द कंट्री, बट हमारा एक अदना सा सिपाही बिना किसी वजह के आपको बंद कर सकता है। ये आज का कानून है, आपको मालूम है? ये बिल्कुल सर। ये दुष्ट कानून क्यों आपके ऊपर होना चाहिए? दुष्ट व्यवस्था क्यों आपके ऊपर होना चाहिए? ये व्यवस्था जो है पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील क्यों नहीं होना चाहिए? मिस्टर विकास, है आपके पास इसका कोई आंसर? बट सर, नए वाले लाइक दे आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। अब आई थिंक मे बी बाय 2 इट विल टेक सम टाइम। ये सब दुष्टता है, ये आई बात है। इसमें इसी सिस्टम में बैठे हुए लॉर्ड्स को और पावर दे दी गए तो तुम साले और बड़े गुलाम बन जाओगे। मैथिली फिल्म का जब दिल करेगा तो उठा के आपका अकाउंट सीज कर देगा।
आपको जो है ना दिवालिया बना देगा। तुम क्या सोचते हो कि जो ये कानूनों में संशोधन हो रहा है ये आपके लाभ के लिए हो रहा है? ये आपको बड़ा गुलाम बनाने के लिए हो रहा है। भ्रम में मत रहिए आप। कानून में संशोधन होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जहां जो है ना 15 दिन में 1-8 साक्ष्यों के साथ जो है ना ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। यदि जज जो है ना बदमाश है तो उसे जो है ना अपील अगेंस्ट द जज होगी। अपील जो उसका जो है ना महाअभियोग से अभियोजित करके उनको महोदय को जो है ना जज भी चली जाएगी और करोड़ों में उनसे कंपनसेशन ले लिया जाएगा। फिर किसी जज की औकात होगी कि लॉर्ड बने, वो न्यायाधिकारी बनेगा। इन दुष्ट राजनेताओं का सोच और चिंतन अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये खुद दुष्ट और देशद्रोही लोग हैं। आपको मालूम है, यदि मुझे कहा जाए कि सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है तो मैं जवाहरलाल नेहरू को कहूंगा। बिल्कुल सर, वो है। तो फिर आप कांग्रेस को वोट क्यों, यदि वो है तो कांग्रेस को वोट क्यों जा रहे हैं? और फिर भाजपा अच्छी क्यों है? भाजपा ने तो 10 साल में कुछ किया नहीं है। क्या भाजपा ने एक भी गलत कानून जो कांग्रेस ने बनाए थे उन्हें रद्द किया क्या? क्या वक्फ बोर्ड को रद्द किया क्या? क्या बर्थ प्लेसेस एक्ट को रद्द किया क्या? क्या जो है ना जो फालतू के रिजर्वेशन से जो कि 10 साल में जो है ना खत्म हो जाना चाहिए थे, हम लोगों को जो है ना समृद्ध क्यों नहीं बना रहे हैं? मैथिली संघ तो कह रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि सबसे गरीब व्यक्ति जो है वो 2029 तक 2 लाख रुपए तक उसकी क्रय शक्ति होगी। सबसे गरीब व्यक्ति की, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, उसे हुनर सिखाना मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी होगी। उसको एक सम्मान देना मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी होगी। उसको जो है ना एडवांस टूल देना मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी होगी। उसे जो है ना बसें प्रोवाइड करना मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी होगी। और कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि फ्री भी मुक्त भारत होगा, रिजर्वेशन मुक्त भारत होगा, दरिद्रता और गरीबी मुक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा। तो हम जब समृद्ध भारत पैदा करने की स्थिति में, तो रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है आपको भाई साहब? आपको पीएम आवास योजना की क्यों जरूरत है जब आपका डिजाइनर्स हाउस बन सकता है एट योर चूजन लोकेशन, जिसमें हर चीज आपकी चॉइस की होगी? ये तो व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मेन पेज पे माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक महिला का फोटो निकला, और जब खोजी पत्रकारों ने उसको जो है ना फाइंड आउट किया तो मालूम पड़ा उस महिला को मिला ही नहीं है। मतलब बताओ, एक ऐसी महिला जिसे पीएम आवास में घर मिला ही नहीं है, उसका फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पे छपता है, और ऐसे दुष्ट जिसने जो है ना उसको छापा है और जिसने जो है ना ऐसा फैब्रिकेटेड न्यूज बनाई है, उस दुष्ट को जेल में चढ़ना चाहिए था कि नहीं चढ़ना चाहिए था? यदि वो जेल में नहीं सड़ता है, यदि उसके खिलाफ अपराध पंजीयन नहीं होता है, तो इसका सीधा मतलब नहीं निकलता है कि इस साजिश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हैं। यही निष्कर्ष निकलता है इसका, और कोई निष्कर्ष निकलता है? वो तो बिल्कुल सर। नहीं तो फिर जो है ना इसका मतलब है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया, जिन्हों को आपने घर सच में दे दिया है उनकी फोटो नहीं मिल रहे हैं क्या आपको? नहीं, इसका कोई जवाब है क्या? या आपकी जो दुष्ट जो पब्लिसिटी टीम इतनी बेकार है कि वो जो है ना थोड़ा भी पेन नहीं लेना चाहती है, कहीं से कुछ भी फोटो लाके? पीआर टीम सर, पीआर टीम कई बार जो पीआर टीम के वालों को जो है ना जेल में भेजो ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप भ्रम में मत रहिए। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के डर से जो है ना वो कानूनों के ड्राफ्ट सेलेक्ट कमेटी को दिए हैं। उन ड्राफ्ट में लिखा क्या है तो देख लो। क्या बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी? क्या नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा? क्या होगा ये बताइए मुझे। व्हाट विल हैपन मिस्टर विकास? क्या होगा? ये तो कोई देखना नहीं है, क्योंकि हम तो रेवड़ी खाने के आदी हो गए हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखते हैं। हम इतने दुष्ट हैं कि थोड़ी विद्वत्ता होने के बावजूद भी हम दल गुलाम बने हुए हैं। हम जो है ना अंधभक्त बने हुए हैं। हमें अंधभक्त क्यों होना चाहिए बताइए ना मुझे। Why we should not ask the pointed question कि मिस्टर मोदी भाई यू हैव नॉट डन दिस। आपको 10 साल मौका मिल गया है, आपने वो सभी कानून जो कि संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए थे उन्हें क्यों रद्द नहीं किया आपने? जो चाहे बीपी सिंह हो चाहे कोई भी हो, उसने दुष्टतापूर्वक बनाए थे। आपके संविधान ने आपको बराबर पैदा किया है। हर जाति, हर धर्म, हर रेस, हर लिंग का जो है व्यक्ति, हर रेस का व्यक्ति समान है। यही आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो फिर हिंदुस्तान राजनेताओं ने आपको क्यों बांटा जाति धर्म के आधार पर, और कानून बनाया और आपको जो है ना रेवड़ी बांट के अपना शुद्ध लाभ किया है। आज माननीय जो है ना शिवराज सिंह चौहान जो लाड़ी बहना फलानी बहना में जो पैसा बांट रहे हैं, इनके पिताजी का है क्या? अपनी संपत्ति बेच के दें तो जानूं मैं, है इनके पिताजी का?
बिल्कुल सर, इन चीज़ों के साथ में तो कभी मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं भी नहीं खड़ा हूँ, और उसके अलावा जो सोशल वर्क हम करते तो हैं उसके मिस्टर अंदर भी इन विकास चीज़ों को शर्मा, तो पता आप नहीं। मिस्टर विकास शर्मा आप क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बनेंगे? सर वो तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन को हम बेहतर भविष्य कैसे दे पाएँगे? तो मैं मान लूं कि जो है ना अभी आप जो है ना चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपना वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे, और यदि आप टेलीग्राम ऐप यूज नहीं करते हैं तो डाउनलोड करके अभी तत्काल। मैं हाँ? मैं तो सर टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, मैं टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, और क्राइम फ्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर इसके लिए तो काफ़ी लंबा है, मतलब अब वही बात है कि बहुत सी चीज़ें सोशल लाइफ मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं आपकी तो बात से आप जो है हमारे क्राइम फ्री भारत, सहमत एक मिनट, क्राइम फ्री भारत जो है ना इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इट्स अवेलेबल ऑन ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. हाउ कैन यू हेल्प आउट टू प्रमोट इट सो दैट इट शुड रीच टू ईच एंड एवरीबडी? So at this point of time, we are conducting like programs, the seminars in different colleges, schools, even on the rural areas. So जैसे पंचायत वगैरह So होती है तो वहाँ पे हम can you use that platform and opportunity in educating about the कि जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने इस देश के साथ दुष्टता की? आपको मालूम है बिल्कुल सर, ये? I will आपको say ये about एक मिनट विकास जी, आपको ये मालूम है कि अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि इन्हें इस देश को छोड़ के भागना ही था? फिर हमारे जो है ना फिर हमारे दुष्ट नेहरू ने, जस्ट ए मिनट, फिर हमारे दुष्ट नेहरू ने उसी उन्हीं उन्हीं की शर्तों पे क्यों जो है ना देश का विभाजन स्वीकार किया? क्या ये बच्चे को नहीं मालूम था कि यदि देश का विभाजन होगा तो कत्ल आम होगा? होगा कि नहीं होगा? आज हमें बिल्कुल कांग्रेस से और जो ना नेहरू से नहीं पूछना चाहिए कि तुमने साला ये बताओ कि जो है ना कोई डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं कराया? वाई देवर नो एसओपीज, नो प्रोटोकॉल्स, नो डिप्लॉयमेंट, आर्मी, पुलिस, फ्रीडम फाइटर्स, स्टूडेंट्स सभी का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं कराया? यदि कोई कत्लेआम करेगा तो ये जघन्य अपराध होगा, उसमें अपराध पंजीयन होकर साले जेल में चढ़ाएंगे, क्यों नहीं किया? क्योंकि ये राजनेता दुष्ट हैं, दुष्ट थे। इन्होंने अपने भले के लिए इस देश को दो भागों में बांट दिया, और जो संविधान का जो है ना जो दो चीजें थी, अदरवाइज संविधान आपको मालूम है 80% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा है। माननीय जो है ना बाबा आम्बेडकर के दो बड़े कंट्रीब्यूशन थे, एक था फंडामेंटल राइट और दूसरा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दुष्टों ने उसको भी नहीं माना। इन दुष्टों ने फंडामेंटल राइट्स का खुलेआम उल्लंघन किया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की चीजों को माना नहीं है। अदरवाइज आप बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिवर्सल जो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इंडियन सिविल कोड होना चाहिए था, भारतीय सिविल कोड होना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कितने दुष्ट हैं ये राजनेता कि 1950 में संविधान लागू हो गया और 1952 में आप जो है ना हिंदू मैरिज एक्ट बना रहे हैं, हिंदू फलाना बना रहे हैं। क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल सर, उनका तो मोटिव ही नहीं था ना। बात तो वही है भैया ये मोटिव नहीं था तो फिर विकास जी, यदि इनका विकास कि आपका 40 ईयर जो है उसको इस्लामिक स्टेट बना लेंगे, हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, तो वो तो आज भी उनके मन में चल रहा है सर। मैं तो आज तो भी इसका सीधा मतलब है कि सभी राजनेता दुष्ट हैं। यही प्रिसाइजली क्राइम फ्री भारत कह रहा है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता दुष्ट हैं। आज का जो भयावह स्वरूप आ गया है, राक्षसी स्वरूप आ गया है, तो उसकी जान एक तोते में है और वो तोते का नाम राजनेता है। यही तो मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं। और मैथिलीशरण गुप्त एक मॉडल ले आए हैं, जस्ट ए मिनट, मैथिलीशरण गुप्त एक मॉडल लेके आ गए हैं जो कह रहा है कि इन सभी राजनेताओं को जो ना पराजित हो जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं। आप जो है ना हमसे लाइव डिस्कशन में आएंगे? हाँ बिल्कुल सर, मैंने उसका जो नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, 11:30 पे है वो, तो इट्स ऑलरेडी इन द शेड्यूल। करेक्ट। तो आप जो है ना उसमें देख पाएंगे कि उसके कमेंट बॉक्स में जो है ना लाइव जुड़ने की लिंक भी है, तो उसको क्लिक करके आप लाइव जुड़ जाइएगा जी। राइट। और आगे की बातें हम अगले चैप्टर में करेंगे, साथ में करेंगे। तो मैं क्या मान लूं कि आप जो है ना क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बन रहे हैं? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है सर। मतलब नहीं, उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है, उसकी इंसेंटिव स्कीम है। जो हम आज का सेशन रख रहे हैं वो उसी इंसेंटिव स्कीम को समझाने के लिए रख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको चंद्रगुप्त का प्रिंट आउट निकाल के बाकायदा जो खाली स्थान है उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। चंद्रगुप्त इनडायरेक्टली जो है आगे चल के यदि मेरिट लिस्ट में आएगा तो उसे विधायक का टिकट मिलेगा, ये प्रिज्यूम्ड है। इसलिए हम चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन में ही आपसे 5 जो है ना विधायक क्षेत्र के वो प्रायोरिटी के अंदर पे वो मांग रहे हैं, जिससे
जब जो है यदि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं तो हम उस क्षेत्र का टिकट आपके पास पहुंचा दें। ठीक है। तो ये तो इनबिल्ट है पूरा चीज, इसमें इंसेंटिव स्कीम इनबिल्ट की गई है कि आज यदि आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 500 पॉइंट जो है ना रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप जो है ना उसका प्रिंट आउट निकाल के बाकायदा साइन करेंगे और जो भी जानकारी मांगी गई है उसको भरेंगे और फिर अपना एक वीडियो बनाएंगे जो चंद्रगुप्त की शपथ को लेते हुए, और बाद में अपील भी करिए कि हम तो बन गए आप भी बनिए टाइप का, और उसे आपको मुझे टेलीग्राम ऐप में भेजना है जो कि हम जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। अच्छा विकास, यदि आप जानते हो कि मुझे कल एक बच्चा बता रहा था 13 साल का कि कुछ हैशटैगिंग करके हम अपने उसकी रीच बढ़ा सकते हैं, तो आर यू अवेयर और दैट हैशटैगिंग? यस सर। तो कैन यू गिव मी ए सेशन ऑन हैशटैगिंग सो दैट यू कैन जो है ना वी कैन इंक्रीज द रीच टू इट। श्योर सर, मतलब हैशटैगिंग बिल्कुल सर उस पर काम किया जा सकता है। इट विल इंक्रीज सर, इट इंक्रीजेस द रीच। हम उसमें एक काम वो कर लेते हैं कि उसके ऊपर एक लाइव सेशन कर लेंगे, जो आपका 4:30 बजे का सेशन होगा वो हैशटैगिंग के ऊपर होगा, वो आपके साथ ही होगा। यदि आप अपने किसी साथी को इनवाइट करना चाहते हैं तो वो इनवाइट कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू जो है ना लूज अवर टाइम, क्योंकि हमें इसी जो है नवंबर में मध्य प्रदेश में जो है सत्ता स्थापित करना है, क्योंकि बिना सत्ता स्थापित किए इस देश का भला नहीं कर सकते आप। और सत्ता किसके हाथ में आएगी? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेगा। तो इस सिस्टम में यदि आप जो है ना प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले लोग बन गए, क्योंकि आप जगह जगह घूम रहे हो, तो बड़ी आसानी से लोगों को जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? बिल्कुल सर, वो डेली बेसिस तो, पे हो ही रहा है सर। आप यदि उसको बहुत सारे लोगों को जोड़ पाओगे और नंबर 1 पे आ गए तो शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री आप बन जाओगे। हालांकि नहीं सर, मेरी तो अपेक्षा ही नहीं है जी। सवाल वो नहीं है, क्राइम फ्री भारत का तो कमिटमेंट है, घोषणा है। यदि आप नहीं मानोगे तो नंबर 2 को दे देंगे, नंबर 2 भी नहीं मानेगा तो नंबर 3 को दे देंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया सर। मेरा उद्देश्य भी बिल्कुल मतलब एक ही उद्देश्य है मेरा कि जितना भी जीवन है उसको कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अरे आपका जीवन तो बहुत बड़ा है, आप विकास जी आपका जीवन बहुत बड़ा है, आप चंद दिनों में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, चंद दिनों में। लग जाइए, अपने साथियों को लगा दीजिए, कुछ देर में इसी को सबसे बड़ा वो बना लीजिए, चंद्रगुप्त बनिए, संगोष्ठियां करिए, लोगों के बीच जाइए, कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, पेरेंट्स से मीट करिए, झुग्गी में रहने वालों के पास जाइए, स्लम एरियो में नहीं जाना चाहिए, टैक्सी वालों के पास जाइए, इनके पास जाइए, किसानों के पास जाइए, फ्रीडम फाइटर्स के पास, जिसके पास जा सकते हो उन सबके पास जाइए और उनको जोड़िए। यदि आप सभी लोगों को जोड़कर जो है चंद्रगुप्त में नंबर बना जाएंगे तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। आप नहीं चाहोगे तो नंबर 2 वाला बन जाएगा, वो नहीं चाहेगा तो नंबर 3 वाला बनेगा, लेकिन मैथिली चंद्रगुप्त की घोषणा है। तो देखिए, जुड़ना आपके हाथ में है। जस्ट ए मिनट, जुड़ना आपके हाथ में है कि नहीं है? लोगों को जोड़ना आपके हाथ में है, और इंसेंटिव स्कीम के तहत आपको ढेर सारे नंबर मिल रहे हैं। उसी नंबरों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर जो है ना मुख्यमंत्री तय होगा, उसी के आधार पर उप मुख्यमंत्री तय होगा, उसी के आधार पर जो है ना मंत्री तय होगा। तो आप बताओ, टिकट मिलने से लेके मंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलना सब आपके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? सही बात है, बिल्कुल सर। आप बताइए, आपको मैथिली चंद्रगुप्त को कोई जो है ना मस्का लगाने की जरूरत है, चमचागिरी करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर जो है देर किस बात की है? जाग जाओ, जाग जाओ, ठीक है ना? मैं आई एक्सपेक्ट यू विल ज्वाइन मी ऑन एट 11:30, राइट? 11:30 आई ज्वाइन यू सर। और उसके अलावा सर आई पिंग यू ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको अभी एक मैसेज करता हूँ, मैंने नंबर आपका सेव कर लिया था। आई जस्ट पिंग यू, तो आप मुझे टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए एंड आई विल बी सेंडिंग यू लाइक, और आप मुझे वो जो फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, आई विल गेट इट डन। ओके, वो सब अवेलेबल है, वो हम आपको भेज भी देंगे, और वो सभी हमारे व्हाट्सएप पे अपील सभी उसमें है। वो बेसिकली हम जो भी चाहे फेसबुक पे दे रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, चाहे सब पे कर रहे हो, वो पूरा उसका जो है ना पूरा कंटूर है उसका, राइट? ओके सर। तो उसको आप जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए, साइन करिए, उसको अपलोड कर लीजिए, एक अच्छा सा सुंदर सा अपना वीडियो बनाइए, जिससे दूसरे लोग भी जो है उत्साहित हों और लग जाइए इसमें। हम आपको कह रहे हैं कि एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं जीतेगा। शिवराज सिंह चौहान भी हारेंगे और छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी हारेंगे।
छिंदवाड़ा से हारेंगे, जिसे वो सेफ सेफ समझते हैं ना, वहां से हारेंगे। बिल्कुल, वो बकैती समझ लिए सर, उन्होंने अपने पिताजी की, कि बोले मैं नहीं तो मेरे बाद मेरा लड़का भी लड़ेगा। तो बट मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, हमारा वर्ड यूज किया है बपौती। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी हारेंगे, और ऐसे सभी राजनेता जिन्होंने अपनी बापौती समझ लिया है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे सभी बापौती वाले राजनेता न केवल हारेंगे, उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसमें कोई आपको संदेह है मिस्टर विकास? सर लेकिन मतलब फिर भी मतलब मैं देखिए, मैं किसी पार्टी का मतलब पार्टी को सपोर्ट वोट तो मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये तो क्राइम फ्री भारत, ये तो क्राइम फ्री भारत मिशन है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। ये कह रही है कि 21 लक्षों के साथ इस देश को बदल देगी। तो ये दिस इज ए मिशन, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, इसने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट करके रखी है, जिससे जो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आएगा उसको टिकट देने के लिए तो पार्टी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सर, लेकिन सर उसके साथ साथ में जो लोग मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वो समाज के लिए समर्पण भी उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे सभी लोगों का क्राइम फ्री भारत मिशन में स्वागत है। वो अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्टर भी कर सकते हैं। उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस केवल उन्हें अपनी शक्ति को जो है यूज करना है लोगों को जोड़ने में। और यदि वो मेरिट लिस्ट में, अभी तो उनको विधायक का टिकट नहीं मिला है क्योंकि इन्हें तो दुष्टों को ही देना होता है। तो जिन्होंने इनकी वर्षों तक सेवा की, वर्षों तक लोगों के लिए अच्छा काम किया, उनको नजरअंदाज करके उन्होंने दुष्टों को टिकट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? बिल्कुल दिया सर, और उसके लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए भी गए हैं, ऐसा नहीं मतलब सर, उस टिकट की कॉस्ट भी है, वो कॉस्ट भी पे करते हैं ये। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे सभी राजनेता जिनको आप जानते हो, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी सूची बनाइए और उन्हें चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि ये तो मिशन है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों का स्वागत है। जो 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके संदेश के साथ इस वार्तालाप को क्लोज करेंगे। ओके, तो मेरा तो एक ही संदेश है, जब तक हम नहीं समझेंगे, पहले तो हमें जागना जरूरी है, फिर ये समझना जरूरी है कि एक बेहतर भविष्य हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है एक बेहतर भविष्य बनाने की, और ये इसकी शक्ति हमें देता है हमारा लोकतंत्र, हमारा मतदान। अगर हम एक सही नेता, एक सही पार्टी को सही जगह बिठा देंगे, तो जो भी एक आम जनता के सपने हैं वो अगले 5 सालों में पूरे किए जा सकते हैं। आप किसी पार्टी को क्यों बिठाना चाहते हैं? आप स्वयं चंद्रगुप्त बन के खुद क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? आप पार्टी को क्यों लाना चाहते हैं? पार्टी तो दुष्ट है, पार्टी ने तो प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, पार्टी ने तो पार्टी व्हिप लाया है। आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव चाहे कितना भी घटिया आदमी क्यों ना हो, वो तो आपकी बात ही कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पार्टी व्हिप ने जो ना उसे गला पकड़ के रखा हुआ है। तो ये तो दुष्ट है। संविधान में तो कोई पार्टी था नहीं, इन दुष्टों ने पार्टी पैदा की, घटिया जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया। तो ये तो सिर्फ दुष्ट लोग हैं। अब सभी दुष्ट जो है ना हारेंगे, ये राक्षसी व्यवस्था जो है ना सतयुगी होगी। बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी ही। तो ये जो है ना, ये जो आज एडमिनिस्ट्रेशन है वही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, बस केवल जो है ना कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। इसमें ACR बॉस नहीं लिखेगा। जस्ट ए मिनट, जब आप काम करेंगे तो आपको काम करने के लिए फैसिलिटेशन टूल्स बना दिए जाएंगे। वो फैसिलिटेशन टूल जो काम आज आप 15 मिनट में, आधा घंटे में कर रहे हैं, वो आप 1 मिनट में कर पाएंगे। और उस समय आपके काम के एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उसे जो है ना परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स ही के आधार पर ही आपको पदस्थापनाएं मिलेंगी और उसी के आधार पर आपको जो है पदोन्नतियां मिलेंगी। और कंडक्ट रूल ऐसा कर दिया जाएगा कि यदि जो है आपका बॉस गलत निर्णय लेता है और यदि आप चुप रहते हैं तो आप उस पाप के आप भागीदार माने जाएंगे, आपको जेल भी भेजा जाएगा। और यदि आप उसमें जो है कारण बताते हुए कि ऊपर वाले का निर्णय क्यों गलत है, उसी के साथ पोलाइट भाषा में उसको रिव्यू के लिए लिखते हैं, और चूंकि वो अब आपकी ACR भी नहीं लिख रहा है, आपकी पदोन्नति भी प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, और वो आपकी पोस्टिंग करने की भी स्थिति में नहीं है। पोस्टिंग तो आपके हाथ में पहुंच गई है, क्योंकि आपके काम के आधार पर जो आपकी इंडेक्स बनेगी उसके आधार पर आपको खुद अपनी पोस्टिंग चुन पाएंगे। तो आप बताओ
जो आज आपका बॉस है, जो आपको डराता है, धमकाता है, आपके ऊपर दादागिरी करता है, आपको गुलाम बना के रखता है, आप बताइए शासकीय सेवा से गुलामी गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। आप ये बताइए कि यही जो प्रशासनिक व्यवस्था, यह पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। और आप ये बताइए कि यदि उसके उसके साथ जो है ना वो भी रख दिया जाएगा कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग रिव्यू के बावजूद भी गलत निर्णय लेते हैं, तो उन्हें लाखों में जो है हर्जाना देना होगा। तो ये ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति अपने आप को कानून के ऊपर और भागवेदाता मान लिए हैं और अपने आप को लाट साहब मान लिए हैं, ये सब लाट साहब ठीक होके ठीक व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? आपका प्रशासन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा और कमिटेड और पब्लिक ओरिएंटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आज जो है ना किसी को हाँ? तो फिर I'm so sorry, लेकिन एक कंसर्न जो है मैं आपको मतलब एक मैं हाईलाइट करना चाहता, अगर आप उस पर भी थोड़ी सी मतलब अभी अपन सेशन में आप दे सके टाइम कि सर मतलब देखिए, जो एक आपने विपिन रावत जी का वो सुना होगा कि हम 2.5 फ्रंट के ऊपर जो है फाइट कर रहे हैं। तो सर इस समय मतलब जो मेरा अभी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जैसे स्कूल्स में हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं है कि केवल वो एक हैकर मतलब हम एक स्कैमर्स या क्रिमिनल्स की ही बात कर रहे हैं। कई बार बहुत मतलब मेजोरिटी में जो मैं उसके आगे देखो जस्ट विकास डोंट मिस्टेक मी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम सेइंग कि हमें अवेयरनेस की बजाय इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए। इकोसिस्टम देखिए, अभी अवेयरनेस में क्या होता है, डर आता है। हमें डर की जगह विश्वास पैदा करना चाहिए कि हमारे साथ कोई गड़बड़ी ही नहीं कर सकता है। जब ये डुएबल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो हमें अवेयरनेस की बजाय एक इकोसिस्टम जनरेशन पर लग जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये प्रशासनिक व्यवस्था जो बदल रहे हैं, आपका इकोसिस्टम ही तो बदल रहा है। यदि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो रहा है और वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन में आपको न्याय मिल जा रहा है, तो ये आपका इकोसिस्टम ही तो बदल रहा है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग इकोसिस्टम। तो सर एक सजेशन मतलब एक बात थी, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा मतलब मानना ये था कि सर जैसे अपन स्कूल कॉलेजेस सारी जगह जा रहे हैं, तो हमको हर व्यक्ति को अपने मतलब जो हमारा ये मिशन और हमारा ये एक राष्ट्र के लिए समर्पित मिशन है, तो इस मिशन के अंतर्गत अगर हर व्यक्ति के हाथ में ये शक्ति हो, मतलब उसको एहसास हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपकी वीडियो मैं इस काम को करने के लिए आपसे ये कह रहा हूं कि आप जाइए, जो आप कर रहे हैं वो करिए, और फिर कहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली गुप्ता जो है ना आप लोगों से बात करेंगे, आई विल बी लाइव विद देम, वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बहुत बेहतर है सर। और इसमें सर कुछ और भी कंसर्न, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो सर आप जो कह रहे थे, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ये सोचना मूर्खता होगी कि उसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज नहीं, ऐसा कोई चैलेंज संभव नहीं है जिसका समाधान जो है ना प्लान ना किया जा सके। ऐसा कोई चैलेंज संभव है जिसका समाधान ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। पर्वत के 2 टुकड़े कर दिए थे मान जी ने, तो ये तो सर बहुत छोटी बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि एक अकेले व्यक्ति में यदि वो ठान ले तो इच्छा शक्ति है, तो भाई साहब हम अपने बच्चों के लिए ठान क्यों नहीं रहे हैं? यदि हमें अपने ऊपर दया नहीं आ रही तो अपने बच्चों पर दया आ जाए। अन्यथा जो है जब वो हमारे वीडियो सुनेगा तो वो अपने माता पिता से नहीं कहेगा, रे जो है ना माता पिता, मुझे तुझे माता पिता कहने में भी शर्म आ रही है, तू इतना दुष्ट और इतना निर्लज्ज और इतना निष्क्रिय क्यों था? ये कहेगा कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेगा सर। तो हमें कम से कम कुछ नहीं तो अपने भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी क्या जवाबदेही होगी, क्योंकि ये सब तो जो है डिजिटल उसमें जा रहा है। ये तो जो है ना कल भी अवेलेबल रहेगा, कल भी लोग सुन पाएंगे कि मैथिली गुप्ता ने 14 जो है सितंबर 2023 को जो है विकास शर्मा जी से क्या बात की थी। जब उसको कोई सुनेगा तो नहीं कहेगा कि साले हमारे माता पिता कितने दुष्ट थे, कितने निष्क्रिय थे, कितने घटिया थे, क्यों हमारा अच्छा भविष्य बन सकता था, लेकिन दुष्टों ने अपना तो सोचा ही नहीं, हमारा भी नहीं सोचा। सही बात है सर, वो तो एक सबसे बड़ा चैलेंज। तो बिल्कुल सर, ये तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इसमें इवन जो नए मतलब मैं आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, और मेरे साथ के जो लोग हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो सारे मतलब जब मैं उनसे बात करता हूं, आपको विकास एक चीज और बता दूं आपको। अभी हम एक गारंटी योजना के तहत आ रहे हैं कि जो बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए माता पिता पर आश्रित नहीं होना होगा।
बिल्कुल और कोई फ्री भी नहीं होगी। फ्री, आई एम एंटी फ्री भी, आई एम एंटी रिजर्वेशन, आई एम एंटी गरीबी। बिल्कुल। तो ये बच्चे, आपके बच्चे, आप समर्थ हो सकते हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे जो है अपने डेबिट अकाउंट के आधार पर। आपको यदि बहुत समर्थ है तो आप डेबिट अकाउंट में वो उनका भुगतान कर दीजिए, नहीं तो जब वो कमाएंगे तब हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और हम उनको कमाने के साधन अभी जुटा देंगे, तो उन्हें जो है ना जब नौकरी करेंगे तब तक के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मतलब मैं सर, मतलब मैं तो बहुत छोटा, मतलब आप तो रिटायर्ड हैं, मैं तो अभी 35 साल का हूँ, लेकिन सर मैं बिल्कुल रिटायर्ड नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मैं सुपर एन्युएटेड हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। सेवानिवृत्त और रिटायर्ड में बहुत फर्क होता है। आई एम फुल्ली चार्ज टू मेक ए डिफरेंस। आई एम कमिटेड टू जो है ना डिफीट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऑल नेता। जो व्यक्ति इतनी एनर्जी से काम कर रहा हो वो रिटायर्ड कैसे हो सकता है, वो सेवानिवृत्त हो सकता है। मेरा मतलब वही था सर, मतलब लेकिन बात यही है कि मतलब एक ऊर्जा एजुकेशन पे जो है, ये एजुकेशन, अगर एक एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है तो उससे सब लोगों के लिए, जैसे मिशनरी स्कूल है, तो मतलब जो ये दुष्ट लोग हैं, इन्होंने एजुकेशन को व्यापार बना दिया है। रिसेशन फ्री लोग बाग जो है फीस ले रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सर। इवन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी मेरे पास है, जो मतलब आप फर्दर आप जब भी डिस्कस करेंगे तो कई ऐसे केसेस, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इवन उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं बच्चों को। एक चीज और तय कर लेते हैं, जो मुद्दे आपको एजिटेट कर रहे हैं उनकी एक सूची बनाओ, राइट, और वो मेरे पास भेजो, हम उनके लिए डेडिकेटेड सेशन करेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि क्राइम फ्री भारत जो है ना उसके लिए क्या कर रहा है। श्योर सर, बिल्कुल सर। मतलब अकेला हम समस्या पे बात नहीं करेंगे, हम समाधान हम लाएंगे। हम किसी दूसरे से समाधान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी से समाधान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम माननीय शिवराज सिंह जी से समाधान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त खुद समाधान लेके आएंगे, और वो भी फ्री भी मुक्त होगा, रिजर्वेशन मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा, समृद्धशाली होगा। भारत में सबसे गरीब परिवार, मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है कि 2029 में उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी, और क्राइम फ्री भारत का ही इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट जाएगा, और अभी वो 2025-26 में ही उसका डिजाइनर हाउस बनना चालू हो जाएगा, और उसकी सिलेक्टेड लोकेशन पे होगा वो। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए मिस्टर विकास? बिल्कुल चाहिए सर, और इसमें कंट्रीब्यूट करे बिना ये बन भी नहीं सकता है, तो इसको तो बिल्कुल बनाएंगे सर। और मतलब सर्वदा आपके मतलब इस आपसे इतनी जो कन्वर्सेशन हुआ है सर, मतलब उसने ऊर्जावान भी किया है, और उसने ये भी एहसास करा दिया है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भले ही थोड़ा कठिन है, लेकिन वो रास्ता सही है। ये विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही सरल रास्ता है। देखिए, बाकी सब रास्ते में आप एजिटेशन करते हो, पुलिस आपके ऊपर डंडे चलाती है, पुलिस आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। किसान एजिटेशन में 800 से ज्यादा लोग मर गए। इवन जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है सर मिश्रा, उसके लड़के ने तो इतने गुरूर में किसानों के ऊपर जो है ना एसयूवी चला दी, 4 किसान दब के मर गए उसमें। इनके घमंड देखो ना। वो ब्रिजभूषण शर्मा, जिसने जो है ऐसी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जिन्होंने देश के लिए सम्मान लाया। ये कितना दुष्ट देश है कि जो है ना उन बच्चियों को भी सम्मान को जो है ना नहीं रजिस्टर उनको वो कर पाया। उनके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए बच्चियों को बेचारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। कितनी दुष्ट व्यवस्था है ये बताओ। क्या प्रशासनिक, आज की प्रशासन की क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी केस रजिस्टर करने की? यदि केस रजिस्टर नहीं किया तो जो ना उन लोगों को डिसमिस क्यों नहीं कर देना चाहिए? आर्टिकल 111(2) के तहत संविधान में तो व्यवस्था है, संविधान में उन्हें डिसमिस करने की व्यवस्था है। यदि बताओ एक पुलिस ऑफिसर डिसमिस हो जाएगा आर्टिकल 111(2) के तहत, तो किसी दूसरे की हिम्मत होगी क्या? तो विकास जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, लेट्स क्रिएट ए राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। ये दुष्ट राजनेता कभी ऐसा नहीं करेंगे। इन्हें हमें दुष्ट कहने में लज्जा वो नहीं आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। ये दुष्ट हैं, दुष्ट थे और ये दुष्ट रहेंगे। ना इनकी शिक्षा है, ना इनका चरित्र है, ना इनका सोच है, ना इनका चिंतन है, ना ये अच्छे लोगों को टिकट देते हैं। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं।
है कि नहीं है, बताइए मुझे। मैंने इसमें से कोई भी बात गलत कही है क्या विकास शर्मा जी, बताइए आप मुझे। नहीं सर, मतलब आप जो भी आपने कहा है वो सर्वदा सत्य भी है, लेकिन सर इसमें एक चीज और भी है कि कई चीजें ऐसी हुई हैं, मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर कई बार एक कौन, क्योंकि अभी सर आप तो मतलब इतने सीनियर हैं, आपको पता होगा अभी कई सारे वीडियोस आए हैं जैसे इन लोगों के मुजाहिदीन और ये मुजाहिदों के, तो जिनका मतलब इन लोगों ने ये इनकी दुष्टता है। ये जो है मुजाहिदीन की दुष्टता नहीं है, ये आईएसआई की दुष्टता नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 4 सेक्शन का एक्ट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो बना दें, और फिर मैं चुनौती देता हूं किसी भी मुजाहिदीन को, मैं किसी भी आईएसआई को चुनौती देता हूं कि वो कुछ करके गड़बड़ करके दिखा दे। औकात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट करने वाले ही तो मैं यहाँ पे इंडिया के है ना, उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, वो जेल में सड़ जाएंगे। मुजाहिदीन क्या जो है ना वहां हवा से टपक के कुछ कर लेगी क्या? तो हमें मिस्टर विकास शर्मा, हमें राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। इन दुष्टों ने आपके ऊपर अभी वही इकोसिस्टम थोप के रखा है जो अंग्रेजों ने भारतीयों गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, और प्रक्रिया को लंबा खींच के वर्षों तक तुमको न्याय ना देने के लिए जो सिस्टम बनाया था वही आप पे थपा हुआ है। हमारे राजनेता दुष्ट देशद्रोही लोग हैं, ये देशद्रोही भी हैं, इनका सोच और चिंतन देशभक्ति का नहीं है, ये सिर्फ भाषण देशभक्ति के देते हैं, अदरवाइज ये अंदर से निहायत ही दुष्ट और घटिया लोग हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो है मैं बातचीत और कठोर भाषा का यूज कर रहा हूं, ये अभी कल तक जो है ना क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी हो जाएगी, दुनिया सुनेगी कि मैथिली गुप्त ने क्या कहा है इनके बारे में। तो मैथिली गुप्त जो है कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन में बात नहीं कह रहे हैं, दिस इज ए पब्लिक कन्वर्सेशन, ए डिलेड पब्लिक कन्वर्सेशन, जो करने के लिए 2 लोग आपस में कर रहे हैं, लेकिन इट इज ए पब्लिक कन्वर्सेशन, है कि नहीं है? कल अपलोड हो जाएगा तो पब्लिक कन्वर्सेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल पब्लिक कॉन्वर्सेशन ही रहेगा और लोग इसको सुनेंगे भी। और सर इसी वजह से मतलब एक ही चीज सर, मतलब मैं मतलब आई एम सॉरी, लेकिन एक चीज सर बात यह है कि सर अभी की जो व्यवस्था है, मतलब जो चीजें चल रही हैं और जो हमारा मिशन है, बिल्कुल बस चीज, क्योंकि ये आप ये बताइए, देखिए इसमें 2 तरीके, 1 मिनट विकास, थोड़ा सा 2 मिनट में मैं समझा दूं तो आपके सभी भय संशय खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट में। पहली बात यह है कि इसमें 2 भूमिकाएं हैं, वैसे तो 3 हैं, लेकिन अभी चाणक्य की भूमिका की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो अभी 2 भूमिकाओं की बात करते हैं, सदस्य की और चंद्रगुप्त की। तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन? क्राइम फ्री भारत का सदस्य वो है जो कह रहा है मैं डरा हुआ हूं, घबराया हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, सताया हुआ हूं, मैं अपनी सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो है मैं जो है पर्दे के आगे नहीं आ सकता हूं, मैं कोई जो है ना चंद्रशेखर आजाद नहीं हूं, मैं सरदार भगत सिंह नहीं हूं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर अपनी सदस्य शपथ को जरूर पूरा करूंगा। और सदस्य शपथ क्या कह रही है कि मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के जो है बच्चों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़कर जो है प्रतिदिन 10 लोगों के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, और जिनको जोड़ूंगा उसके पहले उन्हें इस तरीके की वीडियो सुना के पहले उनको ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, तब जोड़ूंगा। इतने मात्र से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। बताइए आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? आप ना जो है ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना किसी को पिटीशन लगा रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं, तो बताइए इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सबसे इजीएस्ट वे यही है, सबसे आसान तरीका आज तकनीक की दुनिया में तो यही है सर। और जब जो है वो डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति, यदि वो जो है जब उसकी तीसरी शपथ का जो तीसरा हिस्सा है कि मैं छत पर चढ़ूंगा, और फिर धीमे से कहता है यदि छत नहीं होगी तो चबूतरे पे ही चढ़ जाऊंगा, और फिर धीमे से कहता है चबूतरा नहीं होगा तो मैं अपने झुग्गी के दरवाजे पे खड़ा होकर गगन वेदी उद्घोष करूंगा कि विकास शर्मा हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। इस डरे सहमे हुए व्यक्ति के सामने ये बड़े बड़े जो है ना राजनेता और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये ढह जाएंगी कि नहीं ढह जाएंगी? बिल्कुल सर। और मैं एक छोटा सा रेखाखंड समझा दूं आपको जी। यदि हम ये माने कि ये जो है योजना मैथिली गुप्त ने आज चालू की है, राइट, आज के आज, राइट, और विकास शर्मा जो है वो पहले व्यक्ति हैं और 8 और व्यक्तियों को
कुल मिला के 9 व्यक्तियों को हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया और उनसे ये शपथ ली। वो इस समय अभी विकास शर्मा कौन है? डरे हुए, घबराए हुए, पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पर्दे के आगे नहीं आना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। और इन व्यक्तियों को हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया। तो आप बताइए, ये शपथकृत व्यक्ति को 9 दिन का संकल्प है कि 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। आप मुझे बताइए, हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। ये 10 लोग जो है जब 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे, बिल्कुल सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब आप जो है ना मुझसे बिल्कुल पूछेंगे कि सर आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे और आपने इतने झंडे गाड़े हुए हैं, आपने जो है ना 13 डिग्रियां लेके रखी हुई हैं और 13 मेडल लेके रखे हैं, 3-4 अवार्ड लेके रखे हैं, आप पर आपने इतने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, सर आप इतना तो समझना चाहिए ना कि जो है ना आदमी जो है ना मैथमेटिक्स से नहीं चलता है। ये प्रश्न आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि ऑपोजिशन तो होता ही है, लोग तो इसको भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपके जहन में सवाल आ रहा है कि आदमी मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स से 100 करोड़ नहीं हो सकते। ये आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सर, वो आ रहा है। अब मैं आपको जो है ना अभी आपसे ही पूछवाऊंगा कि ये आप कितना आसान है, तो मैं इसी बात को जरा उल्टे ढंग से समझाऊं क्या आपको? जी। 9वें दिन जो है 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 में से 90 करोड़ व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। केवल इन महान लक्ष्यों के लिए, परिवर्तित भारत के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भारत के लिए मात्र जुड़ जाने से जो है 100 में से 90% का काम पूरा हो जाता है। क्या इतने महापरिवर्तित भारत के लिए खुद जुड़ जाना कठिन है क्या मिस्टर विकास शर्मा जी? बिल्कुल नहीं है सर। बहुत ज्यादा सरल है कि नहीं है? बिल्कुल, ये कठिन नहीं है सर, बस बात ये है कि नहीं, कठिन है कि बहुत सरल है? आपको एक तरफ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आपका इकोसिस्टम बदल जा रहा है, आज आपका सिर फटा हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आपको गुंडे आके पीट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, आपके साथ साइबर क्राइम हो रहा है, पुलिस केस रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है, आप चारों तरफ दुखित हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, और आपको उसकी जगह पे एक महापरिवर्तित भारत मिल रहा है मात्र जुड़ने मात्र से। तो क्या अपने आप को जोड़ लेने कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। यदि हम इसे कहें कि बेहद ही सरल है इस भाव में, तो क्या अनुचित होगा ये? सर, अगर इस भाव में कह रहे हैं तो अनुचित नहीं होगा, किंतु इस भाव में आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, इस भाव में तो बहुत ही सरल होगा ना ये। बिल्कुल होगा सर, लेकिन सर एक जो अभी लेकिन को अपनी जेब में रखो थोड़ी देर के लिए, फिर आप इसके बाद लेकिन बताइएगा। अब हम कह रहे हैं कि नंबर 2 पे अपन आते हैं। तो जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े थे, उन्होंने 9वें दिन 10-10 को जोड़ा, तो 100 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को, बल्कि 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो 2-4 लोग जो है ना परिवार के हो जाएंगे, 2-4 लोग जो है ना रिश्तेदार हो जाएंगे, 2-4 पड़ोसी हो जाएंगे। तो क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है इस महापरिवर्तित भारत के लिए? बिल्कुल नहीं है सर। तो 99% काम हो गया है। अब आप बताइए, आप सब लोगों से शपथ ले रहे हैं कि 90-90 लोगों को जोड़ेंगे। इस मॉडल में केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। जो मैथिली शरण गुप्त ने, जिसने इस व्यवस्था को चालू किया था, उसके पास पूरे 9 दिन थे कि नहीं थे? तो केवल एक व्यक्ति 10-10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेगा, उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त, राइट? जो व्यक्ति 9 व्यक्ति, जिसमें से कि महेश, जो विकास शर्मा जी भी हैं, उनके पास एक दिन तो खत्म हो गया है, तो उनके दिन पास बचे 8 दिन। तो इन मात्र 9 लोगों को 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को। अब अपन दूसरे दिन आते हैं। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 7। तो मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और आप संकल्प क्या ले रहे हो कि हर कोई 90-90 जोड़ने की कोशिश करेगा, यही है संकल्प कि नहीं है? बिल्कुल सर, राइट। अब जो है अगले दिन जुड़ रहे हैं 900 लोग तीसरे दिन, और दिन बच रहे हैं 6। तो मात्र 900 लोगों को 60-60 लोगों को जोड़ना है, मात्र 900। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9000 5वें दिन, राइट, चौथे दिन, और दिन बच रहे हैं 5। तो 9000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है, केवल 9000। कठिन है? मैं पूछ रहा हूं, कठिन है इस भाव में?
नहीं है सर, इस गाँव में नहीं है, नहीं है। अब बताओ, अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 5वें दिन, और दिन बच रहे हैं 4। केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। क्या इस भाव में कठिन है क्या? मैं पूछ रहा हूं, कठिन है नहीं क्या? सर। कठिन नहीं है, नहीं। राइट। अब अगले दिन जो है 90,000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 3। तो 90,000 लोगों को ही नहीं अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4। तो 40 लोगों को 4। जोड़ना है, राइट। और अगले दिन जी। जुड़ रहे हैं 9 लाख लोग और दिन बच रहे हैं 3। तो 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2। तो 90 लाख लोगों को 20-20 को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1। तो 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़, जिसे किसी को भी नहीं जोड़ना है। जब इतनी सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ताज भी आपके सिर पे है, मुख्यमंत्री भी आप बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आप बन रहे हैं, और सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हार के ये महापरिवर्तित आपको भारत मिल रहा है। आपका पूरा इकोसिस्टम और एक्सपीरियंस बदल जाएगा। इस भाव में क्या ये कठिन है? नहीं सर, ये कठिन नहीं है। बेहद ही सरल है कि नहीं है? इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई धरना नहीं दे रहे हैं, आप कोई पुतला नहीं जला रहे हैं, आप जंतर मंतर भी नहीं जा रहे हैं, पुलिस आपके ऊपर लाठी भी नहीं चला सकती है। तो ये सबसे सस्ता भाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। यदि हम जागने से मना करते हैं और जब ये वीडियो आने वाली जो है ना जनरेशन सुनेंगी, तो उन्हें अपने माता पिता पे लज्जा आएगी कि नहीं आएगी कि तुम कितने निर्लज्ज और घटिया और निष्क्रिय लोग थे कि आपको इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आई जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा था। अरे भैया, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए ही सुन लेते। ये विचार आएगा कि नहीं आएगा भावी जनरेशन में? क्योंकि ये वीडियो तो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल 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 सर, ये तो इंटरनेट पे है, सर्वर पे है, ये तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जी। तो अब आप मुझे बताइए कि आने वाली संतानें अपने माता पिता को कोसेंगी कि नहीं कोसेंगी? बिल्कुल। तो क्या एज ए माता पिता हमारा रोल नहीं बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य दें? बिल्कुल सर। ठीक है ना? चलिए, तो विकास जी, अपन 11:30 बजे जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।